Good morning, dear students. Today again I welcome you all for the course of refrigeration and air conditioning, and today we will discuss another variety of problems on cooling load estimation of your unit number 6. Okay, so let us move ahead. Now we'll see one problem. An air conditioned auditorium is to be maintained by 27 degrees Celsius DBT and 60% relative humidity. The ambient conditions are 40 degrees Celsius DBT and 30 degrees Celsius WBT. The total sensible heat load is 1 lakh kilojoule per hour and total latent heat load is 40,000 kilojoule per hour. 60% recirculated air mixes with the outside fresh air after pass through the cooling coil, and the total air is supplied to the auditorium hall. The condition of air leaving the cooling coil is at 18 degrees Celsius. Okay, now if you will compare this problem with the previous problem which we have solved in the previous video, there is only a difference, which is a major difference, is of the mixing of air. Okay, in previous problem, the fresh air and the recirculated air, they were mixed together in a mixing chamber, and after that they were sent to the cooling coil. But in this problem, if you'll see the line number 4, 60% recirculated air mixes with outside fresh air after it passed through the cooling coil. Okay, 60% recirculated air है, और ये 60% जो recirculated air है जो रूम से आ रहा है, ये जाके मिल रहा है आपके फ्रेश एयर से, जबकि फ्रेश एयर आपकी कूलिंग कॉइल से बाहर आएंगी तब. And after that the total air would be supplying to the auditorium hall. It means if you'll observe the arrangement, in previous problem what we had: outside air, mixing chamber, cooling coil, and then the auditorium or your conditioned room. But in this problem we have just interchanged the positions or locations of cooling coil and the मिक्सिंग चेम्बर. अब इस प्रॉब्लम में पहले क्या होगा, पहले फ्रेश एयर आएगा, वो कूलिंग कॉइल से पास होगा. कूलिंग कॉइल से पास होने के बाद जब वो बाहर निकलेगा, देन इट विल गोइंग टू मिक्स विद द रीसर्कुलेटेड एयर. मतलब पहले होगा फ्रेश एयर, फिर आएगा आपका कूलिंग कॉइल, एंड देन इट वुड बी योर मिक्सिंग चेम्बर, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव द कंडीशन रूम. और जो एयर आपकी कूलिंग कॉइल से बाहर निकल रहा है, द कंडीशन ऑफ एयर लिविंग द कूलिंग कॉइल, इट्स टेम्परेचर इज़ 18 डिग्री सेल्सियस. मतलब एम्बियंट एयर जो है, एम्बियंट कंडीशन पे जो एयर है उसका DBT है 40 डिग्री सेल्सियस, और जब वो कूलिंग कॉइल से बाहर निकलेगा तब उसका टेम्परेचर हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस. Okay, and then it will mix with the recirculated air, and then it would be supplying to your room. And 5 things what you have to calculate here is room sensible heat factor, RSHF, condition of air entering the auditorium, that is the condition of supply air. जो भी supply air है जो mix होने के बाद आपको मिली है, उस air की आपको condition निकालना, that is your temperature and humidity. Then amount of fresh air, the quantity of air which you are supplying to the cooling coil. And apparatus dew point temperature, ADP, that is a temperature of cooling coil. Okay, 18 डिग्री सेल्सियस जो है वो एयर का टेम्परेचर है. कूलिंग कॉइल से फ्लो होने के बाद, कूलिंग कॉइल के ऊपर से जाने के बाद जो एयर बाहर निकल रही है उसका 18 डिग्री सेल्सियस. तो आपको निकालना है apparatus dew point temperature, मतलब टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल. ऑब्वियसली इट वुड बी लेसर देन 18. And last one, the bypass factor. Okay, now with this given data only, we'll show the flow diagram like this. ये है आपका conditioned space और auditorium what we are talking about. Its indoor temperature, the conditioned temperature should be 27 degrees Celsius and relative humidity should be 60%. Okay, ये रूम के अंदर की आपको इतनी कंडीशन मेंटेन करना है. जो आपका फ्रेश एयर आ रहा है वो आएगा एट 40 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 30 डिग्री सेल्सियस WBT. Now outdoor and indoor condition we have mentioned. And second thing, the RSH and RLH, it is related to the room. Okay, रूम में जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है जिससे आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें कुछ ह्यूमिडिटी में चेंजेस हो रहे हैं, वो आपको दिया है RSH और RLH के रूप में. रूम सेंसिबल हीट गेन और रूम लेटेंट हीट गेन, 1 lakh किलोजूल पर आवर एंड 40,000 किलोजूल पर आवर. दिस इज रिलेटेड टू योर रूम. Now from room 60% air is recirculated.
that is a return air. Or 1 point, that is nothing but your fresh air. 2 is nothing but your conditioned air which is present inside the room. And the return air, that is recirculated air, it is 60%. Rest is exhausted to the atmosphere, we can say that. सिर्फ 60% एयर हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं जो कि वापस आपके रूम में आएगी. नाउ एज इट इज सेड दैट द 60% recirculated air, it will mix with the air which is coming out from the cooling coil. मतलब ये जो आउटसाइड एयर है, फ्रेश एयर, ये पहले जाएंगी कूलिंग कॉइल में, उसके बाद जाके ये मिलेगी आपके रिसर्कुलेटेड एयर को, राइट. The fresh air which is at 40 degrees Celsius, it will enter to your cooling coil whose temperature is 18 degrees, whose temperature is not given, sorry, ADP is not given, but the outside temperature, जो भी 40 डिग्री सेल्सियस पे एयर आ रहा है कूलिंग कॉइल में जाएगा, कूलिंग कॉइल से जब बाहर आएगा तब टेम्परेचर उसका 18 डिग्री सेल्सियस. एंड आफ्टर दैट इट विल मिक्स विथ द 60% रिसर्कुलेटेड एयर in this mixing chamber, and whole together it will be supplied to your room. And now I can mark the points like this. Point number 1, that is ambient conditions. Point number 2, that is required comfort conditions. Point number 3 is nothing but air coming out from a cooling coil. Okay, उसका टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द कॉइल 18 डिग्री सेल्सियस. तो थर्ड पॉइंट जो है उस पर टेम्परेचर रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस. एंड देन इट विल मिक्स टुगेदर इन अ मिक्सिंग चेम्बर, और दोनों का जो मिक्सिंग होगा उससे कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होंगे. एंड देन यू विल गेट एयर एट पॉइंट नंबर 4 विच यू आर गोइंग टू सप्लाई टू द रूम. नाउ सबसे पहले आपको जैसा RSH और RLH दिया हुआ है, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर. With this formula, RSHF is equal to RSH upon RSH plus RLH. You will add them and you will get 0.714. ये मिल गया आपको RSHF. इसको आपको मार्क करना है साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे ऑन SHF स्केल 0.714 और मार्क करना है पॉइंट A. Okay, like this. Locate sensible heat factor on SHF scale on psychrometric chart as point A. Okay. और फिर पॉइंट नंबर B जो होता है, दैट इज़ योर अलाइनमेंट सर्कल. ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ 26 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 50% RH. और ये दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, A एंड B. पॉइंट A 0.714 दैट इज़ ऑन SHF स्केल, पॉइंट B 26 DBT एंड 50% RH. दोनों को आपको ज्वाइन करना है. एंड आफ्टर दैट you will have to draw one line which is parallel to line AB. That should be point 5 you are getting after getting the 2 to 5 line parallel to AB. This 2 to 5 it represents RSHF, which is a supply air condition on a different points with the different flow rates. जो 2 to 5 जो लाइन है मिलेगी आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे, वो कोई भी पॉइंट आप उस पे लोगे वो आपको दे सकेगा सप्लाई एयर कंडीशन. सिर्फ हर एक पॉइंट पे आपको डिफरेंट मास मिलेगी क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम उस पर चेंज हो रहा है. ओके, एंड देन as only fresh air is going to enter to your cooling coil, so your GSHF line will be starting from point 1 and it will reaches to ADP. ओके, और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेगा RSHF लाइन को, वहाँ पे आप मार्क करोगे पॉइंट 3 where the temperature would be 18 degrees Celsius. You will understand it when we will actually locate the points and show the processes on psychrometric chart. Okay, point number 3 पे आपको पता है temperature 18 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द कॉइल. और जैसा आपको पॉइंट 3 मिलेगा, 3 के बाद आप मार्क करोगे पॉइंट 4 विथ टेकिंग द कंडीशन दैट लेंथ 3 to 4 इज इक्वल टू लेंथ 2 to 3 और 3 to 2 मल्टीप्लाइड बाय 60%, एज 60% इज रिसर्कुलेटेड एयर. और वहाँ पे आपको मिलेगा टेम्परेचर दैट इज 23 डिग्री सेल्सियस. नाउ फर्स्ट लोकेट पॉइंट नंबर 1. Okay, that is ambient conditions. Ambient conditions आप देख सकते हो, फ्रेश आउटसाइड एयर 40 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 30 डिग्री सेल्सियस WBT. ये रहेगा आपका पॉइंट 1. सिमिलरली पॉइंट 2 मार्क कीजिए, दैट इज़ एट 27 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 60% RH. ये आ गया पॉइंट नंबर 2. ओके, ज्वाइन कर लीजिए 1 to 2. 1 इज़
outdoor condition, 2 is indoor condition. Okay, after this locate SHF 0.714, which is just now you have calculated. On SHF scale you have located 0.714 and locate it as point A. Similarly, you need to locate alignment circle that is at 26 degrees Celsius DBT and 25 and 50% RH, जो कि आएगा यहाँ पर. Now join them A to B. Now parallel to this line A to B, A था आपका SHF and B था alignment circle. You have drawn a line and parallel to this line you will draw one line from point 2 till the saturation curve, and wherever it intersect your saturation curve, wherever it meets the saturation curve, there you will locate point 5. दोनों लाइन पैरेलल है, 2 to 5 और A to B. Now this 2 to 5 it is RSHF line. ओके, इस लाइन पे आपको मिलेगी सप्लाई एयर कंडीशन, जो आपका पॉइंट नंबर 4 है, सप्लाई एयर जो दिख रही है, ये मिलेगी आपको इस 2 to 5 की लाइन पे. ओके, नाउ यू कैन सी दैट कूलिंग कॉइल में जो एयर आ रहा है वो आ रहा है पॉइंट नंबर 1 पे, और जो निकल रहा है एयर वो निकल रहा है पॉइंट नंबर 3 पे. अब जैसा कि मैंने बताया कि सप्लाई एयर कंडीशन इट वुड बी ऑन 2 to 5 लाइन, तो पॉइंट नंबर 3 भी आएगा ऑन दिस 2 to 5 लाइन. ओके, वो रहेगा आपके एयर का आउटलेट टेम्परेचर ऑफ योर कूलिंग कॉइल. ओके, तो वो लेने के लिए आपको 1 से, आप कूलिंग कॉइल से 3 टेम्परेचर रिलेट कर रहे हैं. इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन दिस कूलिंग कॉइल, ओके, यहाँ 3 टेम्परेचर है. 1 इज़ T1, 1 is this T3 and 1 is temperature of coil. Temperature of coil we used to call it as ADP. Okay, cooling coil temperature or surface temperature of the cooling coil, और TD6. तो 3 टेम्परेचर है. T1 मैंने लोकेट किया है, TD1. 3 पॉइंट का भी टेम्परेचर मुझे पता है, TD3 दैट इज़ 18 डिग्री सेल्सियस. व्हाट आई डोंट नो इज़ द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल. तो ये मार्क करूँगा मैं बाय जॉइनिंग T, दैट इज़ पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 3 कौन सा है? 18 डिग्री सेल्सियस. ओके, जो एयर का टेम्परेचर है कूलिंग कॉइल से बाहर निकलने के बाद. तो 1 से 3 को ज्वाइन करो और उसको एक्सटेंड करो सैचुरेशन कर्व तक. जहाँ पे ये सैचुरेशन कर्व को जाके मिलेगा वो रहेगा पॉइंट नंबर 6, विच इज़ द टेम्परेचर ऑफ योर कूलिंग कॉइल. ओके, क्या किया आपने? 2 to 5 लाइन को इंटरसेक्ट किया. ओके, किस पॉइंट में से? पॉइंट 3 में से, बिकॉज पॉइंट 3 इज़ योर टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द कॉइल. You have joined 1 to 3 and extended up to the saturation curve. There you got 6 point number 6, which represent the ADP. That is the temperature of cooling coil. हो गया. अब आपको पॉइंट नंबर 3 भी मिल गया है. अब पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 2, if you can see it on this particular line diagram, यहाँ है पॉइंट 2 और यहाँ है पॉइंट 3. ये दोनों हो गए मिक्स, मतलब 3 और 2 के बीच में आएगा आपका पॉइंट नंबर 4, जिस पे आपको मिलेगा मिक्स्ड एयर विच यू आर गोइंग टू सप्लाई टू द रूम. अब ये कहाँ से लोकेट करना है आपको? यू विल हैव टू लोकेट इट बाय टेकिंग द लेंथ 3 to 2 और 2 to 3 एंड मल्टीप्लाई इट विथ 60%, और उसको मार्क कीजिए पॉइंट नंबर 3 से, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट पॉइंट नंबर 4. व्हाट आई हैव डिड, I have measured the length 3 to 2 by scale. I have measured it and I have multiplied it with 60%, 0.6. Whatever the length I got, I have marked it from point 3 and located point number 4. अब point number 4 जो आपको मिला है, this is your supply air for that particular room or that auditorium. Okay, this way you will have to locate the processes and points on the psychrometric chart. Same thing we will repeat it by the layout of your psychrometric chart like this. फिर से वही चीज़ है. Point number 1 that is 40 degree Celsius DBT and 30 degree Celsius WBT. ये रहेगा आपका point 1. Point number 2 27 degree Celsius DBT and 60% RH. यहाँ रहेगा आपका point number 2. Join 1 to 2. Okay, now locate SHF 0.714 at A.
अलाइनमेंट सर्कल 26 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 50% RH, ये हमेशा ध्यान में रखो, नीचे लिखा हुआ है मैंने, दैट इज एज अ नोट. पॉइंट B इज ऑलवेज योर अलाइनमेंट सर्कल हैविंग 26 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 50% RH. वहाँ पे मार्क करो पॉइंट B. Join A to B and parallel to this line A to B, AB, you will have to draw one line that is 2 to 5. Okay, that is supplier condition. This represent your RSHF line. अब पॉइंट नंबर 1, क्योंकि यही एम्बिएंट एयर जा रही है आपकी कूलिंग कॉइल पे. पिछले बार आपने क्या किया था, पॉइंट नंबर 3 लोकेट किया था 1 और 2 के बीच में, क्योंकि उसमें मिक्सिंग चेंबर पहले था और कूलिंग कॉइल बाद में थी. यहाँ कूलिंग कॉइल पहले, इसलिए कूलिंग कॉइल में जो एयर जा रही है वो जा रही है पॉइंट नंबर 1 से. इसलिए मैं 1 से एक लाइन ड्रॉ करूँगा ऑन दिस सप्लाई एयर लाइन, RSHF लाइन, टिल आई एम गेटिंग द टेम्परेचर ऑफ 18 डिग्री सेल्सियस. DBT की एक लाइन है 18 डिग्री सेल्सियस की, और इस लाइन पे मुझे एक दूसरा लाइन रिप्रेजेंट करना है. ओके, जो 3 से क्रॉस होके जाएगा और जो मिलेगा आपके सैचुरेशन कर्व को एट पॉइंट नंबर 6 लाइक दिस. ओके, सबसे पहले मार्क किया 18 डिग्री सेल्सियस का लाइन, यह है DBT का लाइन जो है पॉइंट नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है. और इस 3 में से एक लाइन ड्रॉ करोगे आप 1 to 6 जो रहेगा आपका GSHF लाइन. अब 3 to 2 मेज़र करो, क्योंकि 3 से आ रहा है आपका फ्रेश एयर, 2 से आ रहा है आपका रिसर्कुलेटेड एयर, और दोनों मिक्स हो गए इन अ मिक्सिंग चेम्बर, एंड you will get point number 4 which is your supplier condition. 3 to 2 मेज़र करो, मल्टीप्लाई करो 0.6 से, और 3 से उसको मार्क करो एज पॉइंट नंबर 4. ओके, और ये रहेगा आपका पॉइंट नंबर 4 विच इज सप्लाई एयर कंडीशन. ओके, 2 to 5 is your RSHF line and 1 to 6 your GSHF line. Now we will go for the calculation part. Two things what you have to calculate here. सबसे पहले हमने सेंसिबल हीट फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. अब निकालोगे आप कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग द ऑडिटोरियम. एयर विच इज़ एंटरिंग टू द ऑडिटोरियम इज़ एट पॉइंट नंबर 4. तो पॉइंट नंबर 4 पे आप लोगे TD4 एंड TW4 as well as the relative humidity. This is the properties of air which is going to enter in your condition space. That is the condition of air entering the auditorium. Dry bulb temperature 23 degree Celsius, wet bulb temperature 19 degree Celsius, and relative humidity 72%. Now next thing what you have to calculate is amount of makeup air. Makeup air, that is a fresh air. तो मेकअप एयर आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप निकालोगे टोटल एयर. ओके, मेकअप एयर, क्योंकि जो आपकी एयर आ रही है टोटल एयर विच इज़ एंटरिंग टू योर रूम, इट इज़ इन बिटवीन 4 to 2. ओके, 2 पॉइंट है आपकी कंडीशन स्पेस का, और पॉइंट नंबर 4 है आफ्टर मिक्सिंग ऑफ फ्रेश एयर एंड द रिसर्कुलेटेड एयर. तो पॉइंट नंबर 4 पे मैं कुछ एंथैल्पी फाइंड आउट कर रहा हूँ, और पॉइंट नंबर 2 पे भी मुझे कुछ एक एंथैल्पी मिल रहा है, दैट इज 61 एंड 56. ये सप्लाई एयर के एंथैल्पीज है. ओके, पॉइंट नंबर 4 और जो एक रिसर्कुलेटेड एयर है पॉइंट नंबर 2, सप्लाई एयर एंड द रिसर्कुलेटेड एयर. अब टोटल एयर जो आ रही है रूम में, इट इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब द टोटल हीट लोड इन दैट पर्टिकुलर रूम. जितनी भी मास आप सप्लाई कर रहे हो उस रूम में, इसका काम क्या है, रूम में की जितनी भी हीट है उसको गेन करें. ओके, और उसकी वजह से आपकी एंथैल्पी जो है एयर की वो भी चेंज हो रही है. 4 पे एंटर हो रही है, 2 पे बाहर निकल रही है रूम से. तो 2 पे एक एंथैल्पी है 62 और 4 पे एक एंथैल्पी है 56. मीन यू कैन से दैट whatever the air which is entering to your room, it is at enthalpy 56. It has absorbed the room sensible heat, room latent heat, and when it leaves, it is at enthalpy 61. तो मेरे पास रूम टोटल हीट भी है, मेरे पास एंथैल्पी डिफरेंस भी है, तो मैं टोटल मास निकाल सकता हूँ एयर का जो आपके रूम में एंटर हो रही है. दैट इज़ 28,000 kg/h. इतनी एयर आप सप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर रूम में इन ऑर्डर टू टेक द हीट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेंसिबल एंड लेटेंट हीट फैक्टर्स. नाउ दिस इज द टोटल एयर, टोटल मास ऑफ एयर. व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, फ्रेश एयर. तो सीधा सीधा 60% इसमें की रिसर्कुलेट हो रही है, मतलब आप फ्रेश एयर कितनी लोगे, 40%. सो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द
40% of this 28,000, that is 11,200 kg per hour. रूम में टोटल एयर थी 28,000, 60% आपने रिसर्कुलेट की. उस टोटल एयर को मेंटेन करने के लिए मुझे वापस कितनी एयर लेना है आउटसाइड से? 40%. ओके, दैट इज़ 11,200 kg पर आवर. ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ मेकअप एयर और अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर. नाउ नेक्स्ट इज एडीपी. एडीपी मतलब फिर से आप आओगे अब कूलिंग कॉइल पे. कूलिंग कॉइल कहाँ पर है? इन बिटवीन 0.1 एंड 0.3. यू कैन सी हियर. कूलिंग कॉइल के पहले है आउटसाइड एयर, कूलिंग कॉइल के बाद में है कंडीशनड एयर, दैट इज एट पॉइंट नंबर 3, जहाँ पे टेम्परेचर है एयर का 18 डिग्री सेल्सियस है. तो कूलिंग कॉइल के पहले जो टेम्परेचर है 40 है, कूलिंग कॉइल के बाद में जो टेम्परेचर है वो है आपका 18 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर आपको नहीं पता दैट इज़ T6. ये भी आपको मिलेगा साइक्रोमेट्रिक चार्ट से. जो आपने प्रोसेस शो की है, जो लाइन आपने रिप्रेजेंट की है 1 से 6, 1 एम्बियंट एयर, 6 कंडीशन एयर और 6 इज़ नथिंग बट योर ADP, जो मिलेगा आपको 13 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दिस इज़ योर कॉइल टेम्परेचर, कॉइल सरफेस टेम्परेचर. एंड लास्ट वन दैट इज़ अ बाईपास फैक्टर. अब बाईपास फैक्टर में आपको फिर से 3 चीज़ें लगती है. फिर से ये कूलिंग कॉइल से डील करेगा और एयर से डील करेगा. एयर इनलेट पे है 40 डिग्री सेल्सियस पे और आउटलेट पे है 18 डिग्री सेल्सियस पे और कॉइल का टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस. सो सिंपली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज. बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू exit air minus ADP divided by entry air minus ADP. Okay, entry air and exit air, that is the temperature of air. So exit पे temperature है 18 और entry पे temperature है 40. If you will calculate, you will get it as 0.185 as a bypass factor. So this is how you have calculated the bypass factor. 5 things whatever it has asked, you have calculated this way. सिर्फ डिफरेंस इसमें ये है इस प्रॉब्लम में और प्रीवियस प्रॉब्लम में, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ योर कूलिंग कॉइल. पिछले प्रॉब्लम में कूलिंग कॉइल मिक्सिंग चेम्बर के बाद में था, इस प्रॉब्लम में कूलिंग कॉइल मिक्सिंग चेम्बर के पहले है. सो अकॉर्डिंगली you got some changes in the processes represented on a psychrometric chart. So in next video we will again going to cover few more problems related to the load calculation. Thank you.